Hi everyone, welcome to my channel. My name is Kirti. I hope you are doing great, safe and sound. Thank you so much for giving love to my first video. Keep giving love to all my videos. It really motivates me a lot and it means a lot. Thank you so much. Today's video is going to be about why people fail in cabin crew interview and why they do not apply again. So there could be so many reasons why people fail in cabin crew interviews. So motive of making this video today is not to demotivate anyone but to help you guys what mistakes people do and what you should not do out of my experiences, and it is going to be on the basis of experiences I've seen of people. So without any further ado, let's start with the video. So there could be so many reasons why people fail in cabin crew interview, out of which one reason could be they do not fall under eligible criteria. Now when you're falling under eligible criteria, you're good to go. When you're not, then you have to work in some specific areas. So if you are not eligible in terms of your height, so this is something that you cannot do anything about, because after a certain age we cannot really grow our height. If it is the weight issue, तो आप अपने वेट को डेफिनेटली कम कर सकते हो या बढ़ा सकते हो, एंड देन यू कैन अपीयर फॉर द इंटरव्यू अगेन. इफ इट इज़ रिलेटेड टू योर स्किन, you can definitely work on your skin and you can come back with your preparation again and appear for the. Second reason could be underconfident, that you are underconfident. अभी underconfident होने के भी कुछ reasons हो सकते हैं. It could be it could be whether you are underprepared for the interview, you haven't prepared yourself enough, or this is your first time of giving interview, you do not have any idea क्या होने वाला है, कैसे process होता है, how to represent yourself, and it could be your grooming, that you are maybe not well groomed for the interview and the other people are groomed. You're comparing yourself with others. Now comparing yourself with others could be another reason of being an underconfident. तो आप अपने आप को कभी भी दूसरे से कंपेयर मत कीजिए. एवरीवन हैज़ देयर ओन इंडिविजुअलिटी. ट्रस्ट ऑन योर इंडिविजुअलिटी एंड वर्क अपॉन योर कॉन्फिडेंस स्किल्स. इट रियली मैटर्स अ लॉट. नाउ third reason could be communication skills. Abhi communication skills doesn't mean that it has something to do with English. English is a different thing, communication skill is different thing. Communication skills means how you represent yourself in front of others, how you talk to them, how you communicate with them, and how you put across your thought in front of others. It's all about communicating with people, no matter whether you're communicating with them in English or Hindi or any other language. So वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स. ये प्रैक्टिस करते करते ही आएगी. आप प्रैक्टिस कीजिए कम्युनिकेशन स्किल्स की. आप इसके लिए मैंने भी सेपरेट वीडियो बनाई है, उसमें कुछ एक पॉइंटर्स हैं जो मैंने दिए हैं. यू कैन यूज़ दोज पॉइंटर्स एंड प्रैक्टिस. यू आर डेफिनेटली गोइंग टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स. नाउ फोर्थ रीज़न ऑफ फेलिंग इन इंटरव्यू इज़ योर इंग्लिश. कैबिन क्रू इंटरव्यू देने के लिए आपको 2 लैंग्वेजेस में अच्छा होना चाहिए. एक है आपकी हिंदी और एक है आपकी इंग्लिश. हिंदी में हम ज़्यादातर लोग अच्छे ही होते हैं क्योंकि ऑब्वियसली हमारी मदर टंग है, बट इंग्लिश में हमें प्रॉब्लम आ जाती है. इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए यू डू नॉट रियली हैव टू जॉइन एनी इंस्टीट्यूशन. यू कैन डू इट एट होम एज वेल. आप यूट्यूब वीडियोस देख सकते हैं, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, मिरर प्रैक्टिस कर सकते हैं. आई हैव टॉक्ड अबाउट इम्प्रूविंग योर इंग्लिश communication skills in my previous video as well. You can watch that and practice your English at home without paying anything and appear for the interview again. Now do not justify your mistakes. Very important. Fifth reason is people justify their mistakes after failing in interview. Do not justify your mistakes. It is not going to help you. You are not going to improve yourself for the next time. On the basis of my experiences, I have seen people doing it. That's why I'm adding this point. आप अपनी मिस्टेक अपनी इस चीज़ को दूसरे के ऊपर मत डालिए या तो उसको जस्टिफाई मत कीजिए. Write down your mistakes and try to work on them and make a plan how you're going to work on your mistakes. Very important. And then the other reason could be that you are underprepared. You are going for the interview just like that. आपने कोई रिसर्च नहीं की है कि इंटरव्यू कैसे होता है, क्या क्या राउंड्स होते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. थोड़ा सा एक आपको आइडिया हो ताकि हाउ टू ग्रूम योर सेल्फ. आप अंडर प्रिपेयर होके गए हो. आपको ग्रूमिंग का पता होना चाहिए कि आप क्या पहन के जा रहे हो, क्या पहनना है आपको पता होना चाहिए क्या क्या राउंड्स होते हैं, किस तरह के एटलीस्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसका आपको यू शुड हैव अ स्लाइट आइडिया अबाउट दैट. And so please prepare yourself. Don't go just like that. If you are confident good enough, but still a little preparation will help you out doing better in your interview. So yes, prepare yourself, then only
Now the other reason could be that your grooming is not up to the mark. अभी ग्रूमिंग अकॉर्डिंग टू मी मैटर्स, बट मैंने ऐसा भी देखा है कि कुछ लोगों की ग्रूमिंग जो है उतनी ज़्यादा भी अप टू द मार्क नहीं होती है, बट स्टिल उनका सिलेक्शन हो जाता है. नाउ देर आर सो मेनी रीजन्स बिहाइंड इट. वन ऑफ इट कुड बी ग्रूमिंग इज समथिंग दैट दे कैन मेक यू लर्न इन देयर ट्रेनिंग प्रोसेस. अदर थिंग्स आपको ऑब्वियसली खुद ही काम करना पड़ेगा, बट ग्रूमिंग आपकी बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि दे शुड नॉट कंसिडर यू ओनली. आपकी ग्रूमिंग अगर अच्छी होगी इट विल बी अ वेरी गुड प्लस पॉइंट फॉर यू. अपनी ग्रूमिंग के बारे में प्लीज़ पढ़ के जाइए. जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है कंपनी की, वहाँ पे उन्होंने पूरी अपनी ग्रूमिंग गाइडलाइंस लिखी होती है, हाउ यू शुड अपीयर फॉर द इंटरव्यू. फॉलो दैट गाइडलाइन, देन ओनली अपीयर फॉर द. Last reason that I'm adding here is that you're not serious for the interview. You are going just like that. मतलब आप serious नहीं हो, आपको ये है कि चलो हो जाता है तो भी ठीक है, नहीं होता है तो भी ठीक है. आप थोड़ा सा serious होके जाइए, एज इन अपने आप को थोड़ा प्रिपेयर करके जाइए, अपना थोड़ा माइंड बना के जाइए कि येस दिस इज़ समथिंग दैट यू आर गोइंग टू डू. आपको यही करना है और उसके अकॉर्डिंग प्रेपरेशन कीजिए, अपना खुद का माइंडसेट बनाइए कि आपको ये करना है. अगर आपको नहीं करना है देन ऑल्सो थिंक अबाउट इट, बट इफ़ यू रियली वांट टू डू इट देन ओनली अपीयर फॉर द इंटरव्यू, देन ओनली यू विल बी एबल टू enjoy this job later on. So these were few points according to me जो मैंने ऐड किए हैं, जो मुझे लगता है कि कुछ रीजंस है सिलेक्ट ना हो पाने के. आप अपनी इंडिविजुअलिटी के हिसाब से भी यू कैन ऐड फ्यू पॉइंट्स इन दिस लिस्ट एंड स्टार्ट वर्किंग अपॉन देम. यू आर डेफिनेटली गोइंग टू मेक इट थ्रू. बस आप अपनी वीकनेसेस और अपनी मिस्टेक्स का आपको पता होना चाहिए, एंड इफ़ यू आर वर्किंग अपॉन दैम, इफ़ यू नो व्हाट यू आर डूइंग रॉन्ग, यू आर डेफिनेटली गोइंग टू get through it. Now we are going to talk about why people do not apply in cabin crew interview again after trying for few times. First reason according to me is that we keep so many expectations from ourselves. हमारी expectation बहुत ज़्यादा होती है, हमारे ऊपर pressure बहुत ज़्यादा होता है, सोसाइटी का, फैमिली का, इन्वायरमेंट का, क्योंकि लोग बहुत कम एज में बहुत ज़्यादा अचीव कर रहे हैं आज के टाइम में. सो यू आर लाइक इफ़ यू आर नॉट गेटिंग इट इन 1 go 2 go 3 go, मे बी यू आर नॉट गोइंग टू मेक इट थ्रू. आपको कुछ और करना चाहिए, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए. प्लीज़ डू नॉट थिंक लाइक दैट. इफ़ यू आर एलिजिबल टू अप्लाई एज अ कैबिन क्रू, ट्राई, कीप ट्राइंग. अपनी वीकनेसेस पे काम कीजिए, अपनी सॉफ्ट स्किल्स पे काम कीजिए, हार्ड वर्क हार्ड एंड अपीयर फॉर द इंटरव्यू अगेन. हार मत मानिए, हार मान के मत बैठिए. अगर मैं भी हार मान के बैठ गई होती तो शायद मैं अभी आपके सामने ये इंटरव्यू, इससे रिलेटेड ये वीडियो नहीं बना रही होती. सो प्लीज़ आप हार मत मानिए, अपनी स्किल्स पे काम कीजिए, अपीयर फॉर द इंटरव्यू अगेन. एक्सपेक्टेशन रखना खुद से बहुत अच्छी बात है, बट अगर आप नहीं कर पा रहे हो, गेट अप अगेन, प्रिपेयर योर सेल्फ अगेन एंड अपीयर फॉर द इंटरव्यू. Second reason could be that people do not want to face rejections. Now it is human nature. Even I would not want to face rejection in my life. Nobody would want to face rejection, but rejection is part of our life. इसे इतना ज़्यादा भी सीरियसली मत लीजिए कि आप हार मान के ही बैठ जाओ. आप अपनी कमियों पे काम कीजिए. अगेन वन थिंग आई विल बी रिपीटिंग, कमियों पे काम कीजिए. आपको पता होना चाहिए रिजेक्शंस के पीछे का कारण क्या है, उनके ऊपर काम कीजिए. कम बैक अगेन स्ट्रॉन्गर एंड गिव योर सेल्फ वन मोर. Third reason could be that people think that the interview process is only wrong, or they are biased with few candidates and stuff like this. So this is not true. मैंने ये बहुत ज़्यादा सुना है, क्योंकि मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए हैं, बहुत सारे इंटरव्यूज़ में रिजेक्शन फेस किया है, बट फाइनली आई गॉट थ्रू द इंटरव्यू. बट जब मैंने देखा वहाँ पे रिस्पॉन्सेस क्या होते थे, इट्स अबाउट, लोग ये बोलते थे कि इंटरव्यू के प्रोसेस में ही ख़राबी है, कि वो शायद बायस कर रहे हैं, उनको तो सिलेक्ट कर लिया जबकि वो उतने अच्छे नहीं थे, हम में क्या कमी थी, हमें क्यों नहीं किया, या फिर वो उन लड़कियों को तो पहले ही बुला लिया, हमें क्यों बाद में. मतलब ये बहुत सारी चीज़ें जो मुझे कहीं इनका सेंस नहीं दिखता है, लॉजिक नहीं दिखता इनके पीछे, वो सब चीज़ें मैं सुनती हूँ. ये चीज़ें पे बिलीव मत कीजिए, अपने ऊपर बिलीव कीजिए, क्योंकि जो लोग फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम भी आ रहे हैं वो भी सिलेक्ट हो रहे हैं, जिनका इस इंडस्ट्री में कोई है भी नहीं, या फिर जिनकी कोई जान पहचान भी नहीं है किसी से, वो भी तो सिलेक्ट हो रहे हैं. उनके साथ थोड़ी वो बायस होंगे, उनके अंदर वो कुछ ना कुछ तो देख ही रहे होंगे. तो आप इंटरव्यू प्रोसेस पे बिलीव कीजिए कि अगर आप
स्किल्ड हो या फिर कॉन्फिडेंस हो, जो जो भी उनको रिक्वायरमेंट्स चाहिए वो आप फुलफिल कर रहे हो, दे आर डेफिनेटली गोइंग टू सिलेक्ट यू, दे आर नॉट गोइंग टू बी बायस्ड विद यू. So according to me, these were few reasons why people do not apply for cabin crew interview again. So if you have some other reasons तो जो justifiable है, that's fine, that's absolutely fine. But if these are your reasons, I don't think it's justifiable, क्योंकि ये कुछ ऐसे reasons है जिनका हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि ये हमारे ही दिमाग में है, किसी और के दिमाग में नहीं है. जो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं उनके दिमाग में तो बिल्कुल भी नहीं है. वो अपनी जॉब कर रहे हैं, आप अपनी जॉब कीजिए, गिव योर बेस्ट, अपनी स्किल्स पे काम कीजिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए, कीप ड्रीमिंग एंड कीप वर्किंग अपॉन योर ड्रीम्स. Thank you so much for watching this video. I hope you learned something from this video. Please take a moment to subscribe to my channel, and thank you so much for giving love to my first video again. Thank you. See you again. Bye.